Thank you for this day, Lord. We will cling on to your word, Father. Thank you. We come in your presence, Father. We bring our songs, we bring our offerings to your feet, Lord. Thank you, Lord. Thank you for you inhabit the praises of your people, Lord. And thank you for you told in these end days you will pour your spirit out, Lord. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. Let the King of my heart, let the King of my heart be the mountain
of my heart. Be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. 'Cause You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. Oh, 'cause You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. Oh, let's all sing. You are good, You're good. Oh, 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 'cause You are good, You're good. Oh, 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 You are good, You're good. You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. You are good, You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. You are good, You're good. You are good, Lord. You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. Oh, yeah, You are good, good. Oh, You're good, Lord. तू अच्छा परमेश्वर है, You provide us everything, Father. तू हमें सब कुछ देता है प्रभु। You are Jehovah Jireh, Lord. तू यहोवा एरे है परमेश्वर। Thank you for we lack no good when we are with you, Father. धन्यवाद करते परमेश्वर, हमें कोई भी अच्छी बड़ी बात की कमी नहीं होती जब हम तेरे साथ होते हैं और तू हमारे साथ होता है। You are good, Lord. तू अच्छा परमेश्वर है, You never leave us, Father. तू कभी न हमें छोड़ता है और कभी न हमें त्यागता है। You are our song, Lord. तू हमारा गीत है परमेश्वर। Thank you for you will never let us down, Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर, तू कभी हमें गिरने नहीं देगा। You are good. You're good. Oh, let's all sing you're good. You are good. You're good.
when we worship you, Lord. तू खुश होता है जब हम आराधना करते हैं। Today we remember all the things you have done for us, Father. आज हम याद करते हैं सारी चीजों को जो तूने हमारे लिए किया है। We remember that you were with us in the valleys and you were with us on the mountains, Lord. और हम याद करते हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ उन गहराइयों में था, उन पहाड़ों पर था जो बहुत बड़ी चट्टान बनकर हमारे सामने आए, Because you are good, Lord. क्योंकि तू अच्छा You परमेश्वर है। are good. You're good. Oh, lift your hands and say, you are आइए हाथ ऊपर good. उठाएं और उसे कहें You're कि तू good. अच्छा परमेश्वर है। Oh, you are good. You're good. Oh, sing, you are good. You're good. Oh. You are good, Lord. तू अच्छा परमेश्वर है खुदा। We can't stop telling that you are good, Father. हम रोक नहीं सकते अपने आप को ये कहने से कि तू Because you are अच्छा so है। good, Lord. क्योंकि तू इतना अच्छा है परमेश्वर। Our words cannot express our feelings, Lord. हमारे जो शब्द है हमारी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते। When no one helps, you help, Father. जब कोई भी मदद नहीं करता तब तू मदद करता है खुदा। Let's all lift our hands and tell him again, you are good. आइए हम फिर से अपने हाथों को उठाएं और कहें कि You तू अच्छा are खुदा है। good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, sing you're good. You're good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, sing you're good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you never stop talking to us, Lord. तू कभी भी हमसे बातें करने में रुकता नहीं खुदा। You lavish your mysteries on us, Lord. अपने रहस्यों को हमारे ऊपर उधेड़ देता है। Thank you for you even reveal deepest secrets, Father. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बहुत गहरे रहस्यों को भी तू खोलता है। We give this offering at your feet, Lord. इस अर्पण को हम तेरे चरणों में देते हैं खुदा। You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We love you, Father. तुझसे प्रेम करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना Amen. करते हैं। आमीन। बहुत अच्छा है। मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। जैसे भजन संहिता में लिखा है 118 के 17 आयत में, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। सच में प्रभु ने हमें बचाया है, हमें जीवित रखा है, हमारे श्वास चल रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी और फिर मैंने योलिन सिस्टर की और शिनेला सिस्टर की टेस्टमनी सुनी थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इन्हें भी यही सिम्टम्स है, मुझे भी यही सिम्टम्स है, जैसे तूने उन्हें चंगा किया वैसे ही तू मुझे भी चंगा कर, तू पक्षपात नहीं करता है, तू आज कल युगानुग एक सा खुदा है।
और सच में मैंने अपने बॉडी में उस फीलिंग को महसूस किया। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। फिर थोड़े दिन के बाद यश की तबीयत खराब हुई। उसको जैसे हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर को मैंने कहा कि मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम था, शायद उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा आपने अपना कोविड टेस्ट करवाया? मैंने बोला नहीं, टेस्ट तो नहीं करवाया। मैं डॉक्टर के पास गई थी तभी मुझे बोला तुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, बस और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा इनका इसका कोविड टेस्ट करवाओ और अगर पॉजिटिव हो तो प्लीज इसको यहाँ पर लेके मत आना। तो मैं थोड़ा मुझे चिंता हो रही थी। मैंने पास्टर को कॉल किया। मैंने बोला पास्टर को भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तो पास्टर ने बोला आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे काउंसलिंग दी। बोला कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर पर विश्वास रखो, वो अपने बच्चों को लज्जित नहीं होने देता है। इस वचन को मैंने लिया और सच में हम घर पे आए, प्रेयर कर रहे थे। फिर नीरज ब्रदर ने भी प्रेयर की, उन्होंने भी बहुत एंकरेज किया। फिर मैं प्रेयर कर रही थी कि प्रभु ये हाँ बोले भाई टेस्ट नहीं करवाएंगे। ये भी मेरे साथ एग्री ने मुझे कॉल किया, बोला भाई अभी हम लोग इसका टेस्ट नहीं करवाएंगे। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोला भाई परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है, प्रेम संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। टेस्ट नहीं करवाएंगे, परमेश्वर पर सब रख देते हम लोग। और सच में प्रभु का धन्यवाद है, आज यश एकदम ठीक है। परमेश्वर ने इसको अच्छा रखा है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु अच्छा है, सारी महिमा गौरव उसी का है। और सच में हमें इस बहुत ही क्रुशियल टाइम में हमें संयम की आत्मा को लेना है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से गाइडेंस लेना है। बहुत तकलीफ है पर हमें धीरज नहीं खोना है। प्रभु हमारे साथ है। और वो जब सच में इजरायली निकले तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे रास्ते में तो क्या हम उन्हें देंगे। गर्भवती स्त्रियां जो थी वो नहीं सोची कि हमारी डिलीवरी होगी तो कैसे होगी। और बूढ़े लोग ये नहीं सोचे कि कल को क्या होगा, हम नहीं चल पाएंगे। लेकिन 40 साल वो परमेश्वर के उस जो परिस्थिति में प्रभु ने रखा विश्वास के साथ चले। यस नो डाउट कुड़कुड़ाए, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पार किया विल्डरनेस को। हालेलुया। हम सब भी उस विल्डरनेस को पार करेंगे और एक दूसरे का हिम्मत बांधते हुए आगे जाएंगे। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। ऍक्च्युली मला माझ्या बहिणीसाठी गवाही द्यायची आहे। माझी लहान बहीण नम्रता, ती खूप डिप्रेशन मध्ये होती गेले 15 दिवस, जसं आपलं बोलणं झालं होतं। पण परंतु तुमच्या आणि पास्टर सरांच्या प्रार्थनेमुळे ती त्या डिप्रेशन मधून 50% वरती ती बाहेर आलेली आहे। आणि ती सतत रडत राहायची, ती सतत काळजीत असायची। ती प्रभूंनी काळजी पूर्णपणे तिची मिटून टाकलेली आहे। आणि जसं आपण सोमवारी आम्ही तुमच्या घरी आलेलो, भरपूर अडचणी आलेल्या आपल्याला भेट होण्यामध्ये, पण शत्रूने इतक्या अडचणी आणल्या होत्या की आपली भेट होते की नाही हे शेवटपर्यंत कळालं नाही। परंतु त्याच्यातून ही भेट झाली, सरांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला आणि तिच्या आशीर्वादामुळे तिने इंटरव्ह्यू पण दिला काल। त्या इंटरव्ह्यू मध्ये तिचे 3 राऊंड पूर्ण सक्सेस झाले। फक्त उद्या ऑफर लेटर यायचं बाकी हातामध्ये। तर प्रभूने जसं सुरुवात माझ्याकडून झालेली चर्च मध्ये यायची, परंतु माझ्यासोबत माझी मोठी ताई पण आली, त्यांचा कधीही विश्वास नव्हता, परंतु प्रभूने एवढं चांगलं कार्य करत गेलं की माझी लहान बहीण पण आता आपल्या चर्च मध्ये आलेली आहे। त्यामुळे मला भरपूर आनंद होत आहे। फक्त आता मम्मी पप्पांनी यावं माझी इच्छा आहे चर्च मध्ये, त्यासाठी मी प्रभूला धन्यवाद बोलते। माझ्या बहिणीची सासू कोविड पॉझिटिव्ह होती, त्या मेजर पण होत्या आणि ऍडमिट होत्या, त्या खूप क्रिटिकल मध्ये होत्या। तर सांगितलं की त्यांची गॅरंटी अशी नाही म्हणून, व्हेंटिलेटरवर होत्या। त्यासाठी आम्ही खूप प्रेयर वगैरे केले। नंदा आंटीला, अंकलला पण सांगितलेलं, पास्टरांना पण मी कॉल केला होता, त्यांनाही सांगितलेलं। तर माझी आंटी आहे भीमा आंटी, त्यांनी पण सगळ्यांनी प्रेयर वगैरे केला आणि खरोखर त्या पूर्ण व्यवस्थित झाल्या आणि त्या आता म्हणजे आउट ऑफ डेंजर है, डिस्चार्ज वगैरह पण भेटला आणि घरी आल्या। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और सच में उत्तर देता है। और सच में हमें विश्वास के साथ गंभीरता से प्रार्थना में रहना है और अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करना है। ज़रूर परमेश्वर हमें इस जंगल से बाहर निकालेगा। परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातें की जो आपसे मैं बताना चाहती हूँ। निर्गमन 18 अध्याय उसका 9वां वचन। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजराइलियों के साथ की थी
कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा। 10वां वचन कहता है, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया। 12 वचन कहता है, तब मूसा के ससुर यित्रो ने यानी जेथरो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ा। फादर इन लॉ जेथरो, जब उसे मालूम पड़ता है कि वो मूसा सभी इजराइलियों को लेकर विल्डरनेस में आ गया है, तब वह उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर उसके पास आता है। और जब वो उनकी सुनता है कि कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया और फिरौन के हाथ से छुड़ाया, और कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र पार कराया, और कैसे सारे जो दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे वो बड़े बड़े रथों में थे, उन बड़े बड़े रथों को भी परमेश्वर ने डुबा डाला और कोई उनका दुश्मन बचा नहीं। उस विल्डरनेस में परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया कि ये क्या है, और सच में अद्भुत परमेश्वर है। और न सिर्फ मन्ना दिया, ब्रेड ही नहीं पर उनको मीट भी दिया, यानी मटन भी दिया। हालेलुया। तब जब जेथरो ने ये सब बातें सुनी, तब वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा और मग्न होके कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया। और तब उसने क्या किया, 12 वचन में लिखा है, मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। बर्न्ट ऑफरिंग एंड अदर सैक्रिफाइसेस, मतलब आज जाके हम होम बलि और मेल बलि चढ़ाना नहीं है हमें। आज हमें क्या चढ़ाना है, अपने होठों की स्तुति को उसे चढ़ाना है और हमारी गवाहियों को उसके चरणों में देना है, जिसने सच में जब हम माउंटेन पे थे, पहाड़ पर थे, वो वहां मेरे साथ था। जब हम गहराई वैली में थे, वो मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है और ये बहुत ही क्रुशियल समय है, और इस क्रुशियल समय में हमें रेडी होना है। समय बहुत ही निकट है। यीशु जल्द से जल्द आने वाला, वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, पर वो जो कहता है वो पूरा करता है। He is promise keeper. God never keeps anyone. Jehovah Jireh, all time provider in wilderness also. हर समय वो प्रोवाइड करता है अपने बच्चों को, वो कभी नहीं छोड़ता। Greetings to you. आप सबों को So let's be happy. तो आइए हम खुश हो जाए And enjoy His presence every moment, every day. और हर समय हर क्षण उसकी उपस्थिति का आनंद उठाए। Christ in you, His hope of glory. क्रिस्त जो आपके अंदर है वो महिमा का आशा। महिमा की आशा है। Let's open our Bibles to Colossians 1st chapter 26 and the 27th verse. आइए हमारे बाइबल को खोलें, कुलुस्सियों का किताब उसका पहला अध्याय और उसका 26-27। Even the mystery which had been hid from ages, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। even though mystery was hid from ages, और आप जानते हैं कि ये जो वेद है यानी रहस्य है, वो पीढ़ियों से छुपाया हुआ था, now अब it is made manifest वो प्रकट हो गया है to His saints. उसके संतों के सामने। Saints means संत मतलब those who boast on Him, जो उस पर गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, घमंड करते हैं, those who have nothing to boast on themselves. जिनके पास और कुछ है ही नहीं जिस पर वो घमंड करे। You are saved if you boast on Him. आप पवित्र लोग हैं अगर आप उस पर घमंड You are करते saved हो। if you boast on the body of Jesus Christ. आप पवित्र लोग हैं अगर प्रभु यीशु मसीह के देह पर आप घमंड करते हैं। You are तो saved if you depend on His grace. आप पवित्र लोग हैं अगर आप उस पर निर्भर रहते हैं। You are saved आप संत हैं if you boast on His holiness. जब आप उसकी पवित्रता पर घमंड करते You are हैं। saved if you put on His righteousness. आप संत गण हैं जब उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं। You are saved if you don't
think of your own righteousness, आप संत हैं अगर आप अपनी धार्मिकता के बारे में सोचते ही नहीं हैं, you are covered by his clothes and garments. क्योंकि आप उसके वस्त्रों से, उसके धार्मिकता से ढके हुए Come on, हैं, for there is a mystery revealed to you. क्योंकि उसका जो भेद है आप पर प्रकट हुआ है। For this mystery is no more hidden, but it is manifested towards you. क्योंकि अब ये भेद जो है रहस्य नहीं रहा पर आप पर प्रकट हुआ है। So you're not called to carry fear anymore. आपको डर का आत्मा लेकर चलने के लिए बुलाया नहीं है। You're not called to carry the spirit of division anymore. You're called to be holy. आपको पवित्र रहने के लिए बुलाया You're है। called to be perfect. आपको परिपूर्ण होने के The लिए one who बुलाया has है। called you is faithful and he is going to do it. Somebody, hallelujah. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है, विश्वसनीय है और वो जरूर आपको चलाएगा. You know what is a mystery? आपको मालूम है भेद क्या There है? are many things about mystery. बहुत सारी चीजें हैं रहस्य But की। today let us see the little mystery. तो आइए आज हम छोटी सी उस रहस्य को देखें। Mysteries are open to you, church. हे कलीसिया, जब आपके सामने रहस्य खुला हुआ है, You will fear no more. आप किसी भी बात से भयभीत नहीं होंगे। Most High God's loving kindness. सर्वोच्च परमेश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में ये रहस्य है Towards mankind. मनुष्य के। और Let's open Romans 5:3. हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती. You know, we have a great hope हमारे पास बहुत बड़ी आशा है because of the loving kindness of the Most High God. हमारे महान परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर के प्रेम भरे अनुग्रह के कारण। John 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना You प्रेम know, the किया, same love is flowing amazingly वही प्रेम जो है अद्भुत रीति से बह रहा in the है whole church. पूरे कलीसिया The में। love is flowing powerfully. और वो जो प्रेम है सामर्थशाली रूप से बह The रहा love is है, flowing amazingly. अद्भुत रीति से बह रहा Love है। of the Father is flowing. पिता का प्रेम बह रहा His है kindness is flowing. और उसकी जो दया है He वो बह loved us रही so है। much उसने हमसे इतना प्रेम that किया no one may perish, कि कोई भी नाश न that हो, all may trust on Him. कि हर एक उस पर भरोसा करे। Whosoever believes on Him shall not perish. जो कोई उस पर भरोसा करे वो नाश न हो। It's amazing. ये अद्भुत है। His love is wonderful. उसका प्रेम अद्भुत The है। mystery of the Lord is all about His love. और जो रहस्य है प्रभु परमेश्वर का वो सिर्फ उसके प्रेम में When we है। were so weak, जब हम इतने ही कमजोर थे, in due time God sent forth His Son. के समय में, योग्य समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को भेजा। oh, it's a due time to send forth His love. ये नियुक्त किया हुआ समय था कि वो अपने प्रेम को भेजे। Open our Bibles to 1 John 3:16. आइए हम पहला यूहन्ना 3:16 खोलें। As God opens the door, take it as a chance. जैसे परमेश्वर दरवाजा खोलता है उस मौके को ले As लो। Jesus died for us, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, we need to die for our brethren. हमें जरूरी है कि हमारे भाई के लिए हम मरे। Be ready. तैयार हो This is जाओ। the mystery. ये जो है रहस्य है। When you prepare yourself, जब आप अपने आप को तैयार the करते power of God is going to reveal. परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। And the love of God is going to flow. परमेश्वर का प्रेम बहता His है। kindness will come upon all mankind. उसकी दया हर मनुष्य पर आती है। You know this hidden treasure is inside you. आप जानते हैं कि ये छुपा हुआ रहस्य आपके अंदर है। And God gave you. और परमेश्वर ने आपको दिया Hebrew है। 1:12-1-2 says, इब्रानी 12:1-2 कहता है, we let us keep aside all sort of sins which easily entangles us. वो सारे प्रकार के जो पाप है उसे बाजू में रख के, जो हमें पकड़ के जकड़ के रख देते हैं, उसे बाजू में कर देना The है। yoke is prepared for you, और वो जुआ आपके लिए तैयार किया that you may गया take the है yoke. कि आप उस जुए को You need to उठाएं। take that yoke, आपको उस जुए को उठाना है and you need to kick the sin और आपको पाप को लात मारना है, which easily tries to entangle you and pull you down. जो आपको जकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है आसानी से नीचे गिरा देता है, which will make your lives to be collapsed. और आपके जीवन को
पूरा खत्म कर But देता God है। has not called you like that. पर परमेश्वर ने आपको इस तरह से He नहीं बुलाया। opens the mystery. वो रहस्य को खुलासा करता How है। it is, you know? आप जानते हैं क्यों? My mother used to call me for a church, मेरी माँ कलीसिया के लिए मुझे बुलाती थी, but I used to be with my father. पर मैं मेरे पिता के साथ रहता था। Dare anyone call me? किसी में हिम्मत की मुझे Oh, बुलाए, my father's eyes is full of fire. क्योंकि मेरे पिता की आंखें आग से भरी है। Dare anyone separate me from my father? किसी में हिम्मत की मुझे कोई अपने पिता से अलग When कर you सके। know the truth, जब आप सच्चाई को when जानते you हैं, know the mystery, जब आप रहस्य को जानते there is हैं, power in Jesus. यीशु मसीह में सामर्थ है। When the mystery is open for you, तब जो रहस्य है आपके लिए खुला हो जाता है, that time उस समय you will fear no more, आप डरेंगे नहीं, but you will be bold like lion. पर आप सिंह के समान धैर्यवान होंगे। The roar of Lion of Judah will be heard from you. और यहूदा के सिंह की गर्जना आप में से You know, निकलेगी। you know what people used to say? आप जानते हैं लोग क्या कहते थे? Will become like his father. ये जो है सेम अपने पापा Somebody जैसा say बनेगा। hallelujah. Hallelujah। Be like father. पिता के जैसा बनो। You can be like father when the mysteries are open. जब रहस्य खुल जाते हैं तो आप पिता के समान बन सकते In हैं। Matthew 11:29 he says that take my yoke. मत्ती 11:29 कहता है कि मेरे जुए को उठा, He says learn from me. मुझसे सीख। Why Jesus calling you church to take his yoke? क्यों आपको यीशु मसीह बुला रहा है कि उसके जुए को उठा? Because other yokes will kill you. क्योंकि बाकी जुए आपको मार डालेंगे। It is deadly poison. वो जो दूसरे जुए हैं वो आपको मार डालने के लिए जहर है. You need to listen to God. आपको जरूरी है कि परमेश्वर You का need to सुनो। take the yoke of Jesus. यीशु के जुए को उठाओ, In that yoke it is a bind force. क्योंकि उस जो जुए में है, खाने वाली सामर्थ है. The moment you take the yoke, जिस समय आप उसे उस जुए को you are उठाते हैं, equipped with the bind force. तो आप में वो buoyant force उठाता है, वो It आ works जाता है। powerfully in you. वो अपने सामर्थ्य Take that yoke. उस जुए को उठाओ। Don't take any other yoke. कोई और जुआ मत उठाओ। Go take my yoke upon you. ओ मेरे जुए को अपने ऊपर उठाओ। Learn from me. मुझसे सीखो। For I am meek and lowly in heart. क्योंकि मैं दीन और नम्र हूँ। Oh, you need to learn from Jesus. आपको यीशु मसीह से सीखना है. It will make a open a way. वो आपके लिए दरवाजा And खुला that way करेगा। no man can shut. और उस मार्ग को कोई मनुष्य बंद नहीं कर Hello, it is an eternal way. वो अनंत काल का मार्ग है। He says, I am the way, the truth and the life. वो मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। You are called for that purpose. और आप उस खास मकसद के लिए बुलाए गए हैं। मकसद से बुलाए गए हैं. Take that yoke. उस मकसद को उस जुए को ले लो, Then you will find rest. तब आप आराम The पाएंगे। mystery. आप उस रहस्य को जानेंगे। For what God called you. जिसके लिए परमेश्वर ने आपको Why चुना God था। chose you? परमेश्वर ने आपको क्यों What is the चुना? reason behind it? उसके पीछे क्या कारण Why है? is opening up the mystery to you? और वो अपने रहस्य को क्यों खुला कर रहा That you है? may be like a lion of Judah. कि आप यहूदा के सिंह के That you may समान copy बने Jesus. और यीशु का नकल That you may करें fear no more. और भयभीत न हो जाए। So he said, take my yoke and you will find the rest. वो कहता है मेरे जुए को उठा और तुम्हें आराम मिलेगा। Oh, you'll find rest to your souls. आपको आत्मा में आराम मिलेगा। Oh, yeah, you take that yoke, अगर आप उस जुए को उठाते हैं which is easy. जो आसान है, And he says, my burden is light. और वो कहता है मेरा जो जुआ है वो तो हल्का As है। you take his burden, जैसे आप उस जुए को लेते as you हैं, take his yoke, जैसे आप उसके जुए को लेते that हैं, yoke will lift you up high, high, high. और वो जो जुआ है वो आपको ऊंचा ऊंचा उठाता है। Nothing can stop you. कोई भी आपको रोक नहीं सकता। Nothing can destroy you. कोई भी आपको नाश नहीं कर सकता। Nothing can make you weak. कोई भी आपको कमजोर नहीं बना सकता। Therefore, be with God. इसीलिए परमेश्वर के इसीलिए साथ रहो. परमेश्वर के साथ रहो, Trust God परमेश्वर पे भरोसा and करो allow His power to work in. और उसके सामर्थ्य को आप में बहने दो। This mystery has kept many things for you. और इस रहस्य ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। 1 Corinthians 15 chapter 54th verse.
पहला कुरिन्थियों का किताब 15 अध्याय और उसका 54 वचन। You need a great transformation from the Lord. आपको परमेश्वर के द्वारा अद्भुत बदलाव होना जरूरी The है mystery will bring forth a great transformation. और वो जो रहस्य है बहुत बड़े बदलाव को लेकर आएगा। When now the perishable, this shall have put on the imperishable. और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, The mortal shall put on the immortality. नाशवान अविनाश को पहन लेगा, Then will come to pass the word having been written. और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय That death being swallowed, death in victory. जय ने मृत्यु को निगल ली। Philippians 3:21. और फिलिपी करास पत्र 3 और उसका 21। Let's read it. आइए कोई पढ़े। Who will transform the body of humiliation of ours into glorious body. वह अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना दे। He will change our bodies into the glorious body of Jesus Christ. वो हमारे इस दीनहीन देह को का रूप बदलकर महिमा की देह जो यीशु मसीह का देह है उसके अनुकूल बदल देगा। 2 Corinthians 12 chapter 9th verse says, दूसरा कुरिन्थियों का किताब 12 अध्याय 9वां वचन कहता है, And he said to me, suffices you the grace of me, for the power in weakness is perfected most gladly. क्योंकि मेरा सामर्थ्य तेरे लिए काफी है और तेरे कमजोरी में मेरा सामर्थ्य बहुत है. God's power is going to work in us. परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर कार्य The करेगा power of Christ is enough for us. और परमेश्वर का क्रिस्त यीशु का सामर्थ हमारे लिए काफी। Hallelujah. हालेलुया। Can you trust him? क्या आप उस पर भरोसा कर सकते Can you हैं? look at him? क्या आप उसकी ओर देख सकते हैं? Looking at him will bring a great glory. और उसकी ओर देखना बहुत बड़े महिमा को लेकर आता है। Looking at him will bring a great joy. उसकी ओर देखना बहुत बड़े आनंद को लेकर Looking आता at है। him will pull you to endurance. और उसकी ओर देखना जो है वो हमें अनंत काल तक टिका रखेगा। As Jesus despised shame, author and finisher of our faith. जो हमारे विश्वास का रचयिता और पूरा करने वाला है। For the joy that was set before him, जिसने उस आनंद के लिए वो खुशी जो आनंद उसके सामने रखा था उसके लिए he endured the cross despising it. लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। Today you need to despise every shame. आपको हर हर लज्जा को तुच्छ जानना है. Don't be ashamed. आप लज्जित न हो जाइए, Ashamed of anything. किसी भी बात से शर्मिंदा न हो, But keep it away. पर आप See the goal. बाजू में रखिए See the और mysteries. मकसद की ओर देखें, रहस्य की ओर See देखें what God is going to do about her. और देखें कि परमेश्वर क्या क्या करने वाला है। 4th chapter 12th verse. प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 12 वचन। It says, neither there is salvation in any other name, for there is no other name under the heaven given among men whereby we may be saved. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। There is only one name. केवल एक ही नाम That है, is name of Jesus. वो है यीशु का नाम। In that name there is salvation. उस नाम में जो है उद्धार है There is no other name is given among men. और कोई नाम नहीं है जो मनुष्यों में दिया This गया है। is revealed to us. और वो नाम हमारे सामने प्रकट हुआ है। Is it manifested to you? क्या आपके सामने वो प्रकट हुआ If है? it is manifested to you, you will not be in fear. अगर आपके सामने वो प्रकट हुआ है तो आप डर में नहीं रहेंगे, You will not be dismayed. आप चिंता नहीं करेंगे। But the power of God is going to work in you. पर परमेश्वर का सामर्थ आप में कार्य करेगा, For He has called you. क्योंकि उसने आपको बुलाया है। You know Christ has redeemed us from every curse of law. और आप यीशु क्रिस्त ने हमें हर जो पाप का
नियम है उससे हमें बाहर You निकालना need to trust that redemption power. और आपको उस आजादी के सामर्थ को लेना है, उस पे भरोसा करना है। Christ redeemed us from the curse of law. क्रिस्त यीशु ने हमें शाप के नियम से छुड़ाया है, and he became a curse for us. और वो हमारे लिए श्राप बन गया। Can you believe it? क्या आप ये विश्वास Can you कर trust सकते हैं? it? क्या आप भरोसा कर You're सकते set हैं? free. आप आजाद किए गए हैं। He set you free. उसने आपको आजाद किया If है। Son set you free, you're अगर free पुत्र indeed. ने आपको छुटकारा दिया तो आपको छुटकारा He पाना है। redeemed us from curse. उसने हमें श्राप से मुक्ति No दी। curse can work against you. कोई श्राप आपके ऊपर हावी हो नहीं सकता। You may receive the spirit of adoption. कि आपको दत्तक की आत्मा मिल सके, that you may call out Abba Father. कि आप उसे पुकार सके अब्बा पिता। Do you know your relation between you and the Father? क्या आप आपके संबंध को, रिश्ते को जानते You can call Abba Father, आप बुला सकते हैं अब्बा पिता। and God is going to answer you. और परमेश्वर आपको उत्तर God is going to answer your prayers. परमेश्वर आपके प्रार्थना का The उत्तर power देगा। of God is going to manifest in your life. और परमेश्वर का सामर्थ आप में प्रकट होगा। You need to call Abba Father. आपको जरूरी है There is a कि great आपका relationship between Father and us, पिता और हमें बहुत बड़ा रिश्ता है। and it is because of Jesus. और वो केवल यीशु की वजह से This mystery should be revealed to you. ये जो रहस्य है आपके लिए खुला होना You should know that I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. आपको ये जानना जरूरी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्रिस्त यीशु में। जो मुझे सामर्थ देता है. Church, not to be afraid, कलीसिया से आपको डरना नहीं है, not to be dismayed. चिंता नहीं The करना है। power of God will escape you from eternal death to eternal life. और परमेश्वर का सामर्थ्य आपको अनंत काल से अनंत काल अनंत काल की मृत्यु से अनंत काल के जीवन की तरफ लेकर चलता है. It's only Jesus can do it. ये केवल यीशु है जो कर सकता है। It's only He can do it. केवल वो है जो कर सकता है। Mystery is this, that you are being escaped. और रहस्य ये है कि आपको वहाँ से छुड़ा दिया है. छुड़ा दिया गया। Roman 8:1 says, रोमियो 8:1 कहता है, Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. तो कोई मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. Are you in Christ? क्या आप क्रिस्त में हैं? The power of Christ is seen in you or not? और मैं प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आप में If you know the mystery, अगर आप रहस्य को जानते you will be a हैं, different personality. तो आप खास लोग होंगे। Romans 3:23 says, रोमियो 3 डेविस कहता है, all have sinned and fallen short of glory of God. क्योंकि सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है. The one who escapes you from that death. वो जो आपको उस मृत्यु से The बचाता one puts है, his righteousness on you. वो जो अपनी धार्मिकता को आपके The ऊपर one who was the रखता है, redemption work for you. वो जिसके लिए छुटकारे का काम कार्य किया आपके लिए। Verse 24 says, 24 वचन कहता है, being justified freely, being justified freely by the grace of Him through the redemption that is in Christ Jesus. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। Oh, you're justified freely. ओ आप सेठ में धर्मी ठहराए गए। Are you free? You are the reason for this season. आप इस मौसम का कारण है। God is going to equip you, bless you and fill you. परमेश्वर आपको तैयार करेगा, आशीष देगा। Therefore, there is no condemnation, इसीलिए church. कोई भी दंड की आज्ञा नहीं कलीसिया। If you are in Christ Jesus, अगर आप क्रिस्त यीशु के अंदर हैं you have become a new creation. और आप जो है नई रचना हो गई। You are the carrier of Jesus Christ. आप यीशु मसीह को लेकर You are the carrier of the hope glory. और जो महिमा की आशा है उसे लेकर चलने वाले हैं। There is no hope in the world. दुनिया में कोई आशा नहीं। There is nothing in the world. दुनिया में कुछ भी नहीं। All the world is in chaos. पूरा दुनिया गड़बड़ी But में। those who know their God, they shall do mighty acts. वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बहुत अद्भुत काम। Church, now is the time to know Him more. कल से आप समय है उसे और Let the जानना है। mysteries be unfolded to you. और जो रहस्य है आपके लिए खुला होना चाहिए। Let the old is gone. पुराना बीत The गया, fear is gone. डर चला गया, The faults are gone. गलतियां चली गई.
the negativism is gone. नकारात्मक बातें चली गई, The pull of the devil is gone. दुष्ट का जो खींच- खिंचाव है वो चला गया। Now new thing has come, church, to stand. अब नई बातें हैं खड़ा होने के लिए। You should chant, church. आपको खड़ा होना है कलिसिया, Everything become anew. और सब कुछ नया हो गया। John 3:15 says, यूहन्ना 3:16 कहता है, so that everyone believes in him may have life eternal. जो उस पर विश्वास करता है उन्हें अनंत काल का जीवन Somebody, मिलता है। hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Those who lose their life for Jesus' sake, जो यीशु मसीह के वजह से अपने जीवन को खो देता they है, will get it. उन्हें मिलेगा। Those who safeguard their life, जो अपने जीवन को छुपा कर रखते जो हैं, संभाल के रखते हैं, they will lose it. वो खो देंगे। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? Jesus is your security. यीशु मसीह आपकी सुरक्षा है। There is a safety for you. वहाँ पर आपकी सुरक्षा है। You are going to come back with Jesus again आप फिर से यीशु मसीह के साथ to आएंगे, reign with Him. उसके साथ आप राज्य करने के लिए। So no worry, तो चिंता मत no करो। hurry. कोई भी जल्दबाजी Nothing can put मत you करो। down. कुछ भी आपको नीचे नहीं Jesus is the गिरा firstborn सकता। among the brethren. और यीशु मसीह है जो पहलौठा है भाइयों Oh, में। God has predestined you. परमेश्वर ने आपको पहले से ही ठहराया है. He foreknew you. वो पहले से ही आपको जानता है. He's called you to be like His son. उसने आपको बुलाया है उसका पुत्र होने के लिए। And psalmist says, और भजन संहिता लिखने वाला दाऊद you कहता are है God's. कि आप ईश्वर हैं You are the sons of the Most High. और आप सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र और ये ईश्वर के बच्चे ऐसे डर के रहेंगे तो कैसा चलेगा? हालेलुया, हालेलुया. There is power in the name of Jesus. यीशु मसीह में सामर्थ है। हर ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन मसीह कलीसिया बोलिए हालेलुया. God is having a great thoughts for you, church. परमेश्वर के पास अद्भुत विचार है आपके लिए कलीसिया में। He is Lord of Lord and King of Kings. वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। Behold, He is coming in with the clouds. और देखो वो बादलों पे फिर से आने वाला And you है। know, you are that cloud. और आप वो बादल है And everyone will see. और हर एक देखेंगे। All that laughed at Him will see. और वो जिन्होंने उस पर हंसा वो देखेंगे। All that pierced Him, they will see. जिन्होंने उसे मारा वो They देखेंगे will wail, roaring. और रोएंगे। Somebody say amen. कोई क्या आमीन। Let's open our Bibles to 2 Timothy, 2nd chapter and 12th verse. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय 12 वचन. 12 वचन। If we endure also, we will reign together with Him. If we will deny Him, He will also deny us. Show you one picture if you can see. आपको मैं ये पिक्चर दिखाता हूँ अगर आप Can you देख see this सकते हैं picture? तो। क्या आप देख सकते हैं? Oh, there is glory of God on you. परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर है। We are like that laltens, just that glass. वो लालटेन के कांच की तरह, and the light is inside us. और वो लैंप जो है उस This is what जो प्रकाश है वो हमारे अंदर है। This is what the word 27 says. Colossians 1st chapter 27th verse. कुलुस्सियों का पत्र उसका पहला अध्याय और 27वां वचन. To whom God has willed to make known what is the riches of the glory of this among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। महिमा की आशा कौन है भाई? मसीह। वो किस में रहता है? मुझ में, हम में रहता है। बोलिए हम में। Oh, body of Christ, Jesus is inside you. क्रिस्त की देह यीशु मसीह हमारे अंदर है। It's amazing. ये अद्भुत है, This mystery, ये रहस्य this है, secret, ये बहुत ही गुप्त की बड़ा बातें, है। this doctrine, और ये शिक्षण, शिक्षण, this counsel of God, ये परमेश्वर की जो काउंसिल है, this Christian revelation,
ये क्रिस्ती प्रकटीकरण that Christ in you, the hope of glory. जो क्रिस्त तुझ में है वह महिमा आशा का की महिमा का आशा है. Christ is inside you. और क्रिस्त आपके अंदर है That Christ that are riches और जो महिमा की आशा that God has opened for you. वो परमेश्वर ने आपके लिए खुलासा वो किया है. खजाना को आपके लिए खोल दिया है. That wealth is open for you. वो जो धन संपत्ति आपके लिए खोली That गई है, possessions is opened for वो you. खजाने खोले गए हैं. That abundance is God cleared to you. वो बहुतायत की बातें आपके लिए That valuables are bestowed on you. और वो बहुमूल्य जो चीज है वो आपके ऊपर उंडेली गई है. That is the riches of the glory और वो which is among the Gentiles. और वो धन संपदा जो महिमा का है किसके सामने? अन्य जातियों के सामने. is inside you. वो आपके अंदर है. Christ inside you क्रिस्त आपके अंदर है is a hope of glory. और वो महिमा की आशा Christ है. means Messiah, क्रिस्त मतलब मसीह, liberator, छुटकारा देने वाला, Messiah, उद्धार the anointed one, अभिषिक्त, the one who cleansed the leper, healed the sick, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, is inside you, वो church. आपके अंदर है. कलीसिया. You are more than a conqueror. आप विजयशाली से बढ़कर The one inside you is greater than one who is outside जो you. आपके अंदर है वो महान है उससे जो बाहर है. The great and mighty God is inside you. वो सामर्थशाली खुदा आपके अंदर है. The Redeemer is inside you. छुटकारा देने वाला आपके अंदर You है. are carrying Jesus, आप यीशु को लेकर चलते हैं. the light, a true light. सही प्रकाश He is going to be revealed through you. वो आपके द्वारा प्रकट होगा. Someone will meet you. कोई आपको मिलेगा. He will be touched by that glory. वो महिमा उस महिमा के द्वारा स्पर्श पाएगा. You are different. आप खास है. You are precious. आप बहुमूल्य है. Do you know who is inside you? आपको मालूम है आपके अंदर कौन है? The hope of glory. वो महिमा की Are you आशा. working towards it? क्या आप उसकी ओर काम कर रहे हैं? Do you know the supreme power is inside you? क्या आप जानते हैं कि सर्वोच्च जो परमेश्वर का सामर्थ आपके You know अंदर the है? master is inside you. ओ मालिक आपके अंदर The है. Lord is inside you. प्रभुओं का प्रभु आपके The अंदर है. owner is inside you. ओ मालिक आपके अंदर So है. why to be afraid? तो चिंता क्यों? डरना क्यों? Why to be dismayed? चिंता क्यों? Why to step back? क्यों हम पीछे हटना? Come, stand strong. ओ आओ और सीधा खड़े हो जाओ. 1 Corinthians 2:16 says, पहला कुरिन्थियों का पत्र 2:16 16 कहता कहता है, है. For who hath the mind of Christ? किसके पास क्रिस्त का मन Who है? is going to instruct him? कौन उसे सिखा सकता बताएगा? है. सिखा सकता है. We, however, have the mind of Christ. हमें क्रिस्त यीशु का मन है. Christ क्रिस्त speaks of love, प्रेम के बारे में कहता है. charity सेवा भाव with one another. एक दूसरे की ओर. If you read Corinthians 13:13, पहला कुरिन्थियंस उसका 13 love, प्रेम, hope, आशा, faith विश्वास remains till last. हमें अंत तक रहता है. The greatest is love. और उसमें सबसे बढ़कर है प्रेम. That love वो प्रेम should be inside you. आपके अंदर होना चाहिए. कलीसिया When love is there, जब प्रेम है the mystery is there, तब रहस्य है which is unfolded. जो आपके लिए खुलासा You, कर no रहा one है. can destroy you. आपको कोई भी नाश नहीं कर No one was सकता. able to destroy Christ. कोई भी क्रिस्त को नाश कर नहीं सकता था. Stands for charity. क्राइस्ट का सी जो है वो चैरिटी या प्रेम भाव के लिए. H stands for hope of glory. और एच यानी महिमा का आशा. का आशा Is inside you. वो आपके अंदर है. Hope of glory. महिमा का आशा. Everywhere there is hopelessness. हर जगह आशा ही निराशा होता है. है. But in you, पर आपके अंदर hope of glory. आशा है. महिमा की आशा. R stands for reconciling the world. आज जो है रिकनसाइलिंग मतलब परमेश्वर के साथ एक करना जगत को. As God reconciled the world in Christ with Him, जैसे क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा जगत परमेश्वर के साथ एक हो सका. so God is sending us
इसीलिए परमेश्वर हमें भेज with रहा the है same spirit of reconciliation. उसी मेल मिलाप के आत्मा में कि हम उन्हें एक कर सके So प्रभु के is साथ। the Christ, the hope of glory is inside us. तो क्रिस्त जो महिमा की आशा हमारे अंदर है, So we will going to give a glory, hope of glory to others. तो वही महिमा की आशा हम दूसरों को देंगे। I stands for I live no more, I मतलब मैं नहीं जीता, but Christ lived in पर me. क्रिस्त मुझ में जीता है। Galatians 2:20. गलती करास पत्र उसका 2:20। The life which I live, जो जीवन में जीता हूँ I live for the Lord. मैं प्रभु के लिए जीता I हूँ। don't live for myself anymore. मैं मेरे लिए नहीं जीता। You know now is the end time. We are standing. आप जानते हैं कि ये अंत समय है, आप खड़े हैं। So we need to live for God. हमें परमेश्वर के लिए जीना है। S stands to serve like Christ. और एस यानी क्रिस्त यीशु की के जैसा सेवा करो And give your life as a ransom. और अपना जीवन यीशु की तरह दे दो। T stand for triumph और over evil. टी यानी ट्रायम्फ यानी दुष्ट के ऊपर, दुश्मन के ऊपर विजय को बोलो। You know God is going to give you victory. आप Church. जानते हैं कलीसिया, परमेश्वर आपको विजय देगा। I will tell you. मैं आपसे कहता हूँ, Lastly, I am going to read a scripture for you from Romans 12:1. आखिरी में मैं रोमियो का पत्र 12 अध्याय 1 वचन। You should put on Christ. आप क्रिस्त को पहनो, Know the perfect will of God. परमेश्वर की इच्छा को पहचानो। You are not going to be hurt. आप जो है दुखी नहीं होंगे। Therefore, brethren, I beseech you, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की reminding you the mercies of God. दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ Present your bodies कि अपने शरीरों को दो to God, परमेश्वर को holy, पवित्र, जीवित living, और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके and चढ़ाओ। acceptable to God. There is a miracle. वहाँ पर चमत्कार है। Nothing can touch you. कोई भी आपको छू नहीं सकता No created things can touch you. और कोई भी रची हुई चीजें, बनी हुई चीजें आपको छू नहीं सकती। And you know, all things are created. और आपको मालूम है सारी चीजें बनी हुई है, Only God is creator. केवल परमेश्वर ही है जो रचयिता है। Nothing can harm you. कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। Triumph over evil like Jesus Christ. यीशु मसीह के जैसा दुष्ट पर हावी हो जाओ। Not with evil to evil, और दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं, but with good. पर अच्छाई। Last verse, आखिरी वचन Philippians 3:20. फिलिप्पी का राजपत्र उसका 3:20। We will accomplish according to the mind of Christ. हम क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा के मन के द्वारा पूरा करेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। We are waiting for Lord Jesus Christ coming. और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए रुके हैं। Church, be strong. कलीसिया, आप मजबूत बनो। I see the power of God enveloping मैं us. देख रहा हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ हमें ढक के रख रहा है। Or anything, अगर आपको कुछ भी चीज की जरूरत है, just call unto Him. उसे पुकारे। Take this time seriously. इस समय को गंभीरता से ले, For our Lord is going to come soon. क्योंकि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। We have a citizenship in the heaven. स्वर्ग में हमारा निवास स्थान है। Just worship Him. केवल उसकी आराधना करें, Don't leave. छोड़िए मत। Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Experience His presence. उसके उपस्थिति को महसूस करें, अनुभव करें. अनुभव करें। Raise your hands and do what He says to you. और वो करे जो वो कहता है आपसे। The mystery lavishes on us is deep.
जी In Jesus' name, यीशु के नाम we में come to your throne of grace और तेरे अनुग्रह के सिंहासन के and we तले आते pray, हैं और हम प्रार्थना let your करते church हैं be filled कलीसिया तेरी कलीसिया बढ़ जाए with your power, तेरे सामर्थ के साथ with the faith, विश्वास के साथ with the strength. सामर्थ के साथ We welcome you, Holy Spirit. हम तेरा स्वागत करते पवित्र Let आत्मा everyone be strengthened. हर एक को सामर्थ मिले Let many testimonies take place. बहुत सारी गवाहियां आए Let their hands be strong. और उनके हाथ सामर्थशाली हो Let जाए their knees no more be flexible. और इनके जो घुटने हैं वो कांपे नहीं But be कमजोर न strong. पड़े, पर सामर्थशाली हो जाए Father, पिताजी we thank you for every healing, Lord. हम धन्यवाद करते हैं हर चमत्कार के We लिए, thank you for every miracle, Lord. हर चमत्कार के लिए धन्यवाद We thank you for your very presence. और तेरे खास उपस्थिति के लिए धन्यवाद Father, we pray you envelop every house, पिताजी हम प्रार्थना करते हैं तू हर घर को ढक every sister, every brother, हर बहन हर भाई को every child. हर बच्चे को Then be protected from every lies of the enemy. और दुश्मन के हर झूठ से बचे Let the Spirit of God give them wisdom and knowledge. और परमेश्वर का आत्मा इन्हें ज्ञान दे बुद्धि दे Let them lack no good, इन्हें कोई अच्छी भली बात की घटना but let them be strong. और वो सामर्थ को पाए Today, Lord, I pray for unfolding of your mysteries and wisdom in their lives. आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे रहस्य को खुलासा कर परमेश्वर That they may be filled with thrill. कि वो खुशियों से झूम उठे We thank you. हम धन्यवाद Every weakness in their knees be destroyed. हर कमजोरी उनके घुटनों में नाश हो जाए Every weakness in the flesh, कमजोरी शरीर में I command you to leave. मैं प्रार्थना कर मैं आज्ञा देता हूं कि छोड़. जा। Every foolishness and stubbornness मूर्खता हर कठोरपन be out. निकल जाए Let the church be healed. कलीसिया चंगा हो जाए Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं Thank you for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन